Good morning, students. As you all know that we were discussing about election and representation. बहुत सारी चीज़ें हैं that we have already been discussed कि FPTP सिस्टम क्या है, PR सिस्टम क्या है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स, प्रोसीजर क्या है, इंडियन इसका क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे प्रोसीजर वाइज हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले इलेक्शंस कैसे कराए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की। हम जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। When we talk about election, this is the most important thing. Now the very first thing which you need to know is क्या होता है। Adult franchisee means that the right to vote should be given to all adult citizens who are above 18 without distinction of caste, religion, class or sex. All the citizens who have reached to the age of 18, they must have given their political right, that is right to vote. This phenomena is known as universal adult franchising. There should be no discrimination between citizens on the basis of caste, creed, gender, class, whatever so. There should be no qualification of property or education also. Only minors, bankrupts, criminals, aliens, they are deprived of their right to vote, and all other are given this right without any discrimination. Now the age of adulthood differs from country to country. This 18 years is for our country. बाकी सारी कंट्री में हम देखते हैं it varies, like we say in USA it is 21 years, in Russia it is 18 years only, in England it is 23, Norway, in India in Norway it is 23, they give right to vote after 23. तो सारी कंट्रीज में ये हम देखते हैं अलग अलग है। Now the voters cast their votes by secret ballot system. This thing it is very common हर जगह पर। In all the countries we see that polling of vote ये बहुत सीक्रेट रखा जाता है। हम जिसको भी चाहें, जिस कैंडिडेट को भी चाहें उसको वोट कर सकते हैं, जिस पार्टी को चाहें, कैंडिडेट को चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? It is very clearly written in our constitution, one should vote who he believe will run the government properly. We should not vote on the base of casteism, on the base of we like this party, so we must vote that. Right to vote या casting your vote is the most important right, जो कि हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। Now many criticisms comes in the way of universal adult franchising. बहुत सारे आते हैं कि क्यों दी जानी चाहिए, जो हमने ये जो राइट टू वोट की जो एज वगैरह रखी है, क्यों है, किस लिए है, क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आती हैं, है ना। इन सब के बारे में we will be discussing. When we talk about points of criticism against universal adult franchisee, तो सबसे पहला आता है that it is not proper to give the right to vote to ignorance. अब राइट टू वोट तो आपको सबको देना है ना, हम किसी से ले नहीं सकते, किसी को मना नहीं कर सकते। अगर वो सिटीजन है इस बेसिस पर उसको है तो उसको देना पड़ेगा आपको। अब ये क्या कहता है, ये कहते हैं द राइट टू वोट, जो हमारा राइट टू वोट है, इट इज़ अ नेचुरल राइट
which everybody must enjoy, not can, everybody must enjoy. हर किसी के पास जो है ये right होना चाहिए. In fact, it is a sort of special privilege which is conferred only on those person who are best fitted and can utilize it for the welfare of the state. अब there are certain people who say, those who criticize this, कि भाई a person who is able to judge and able to analyze the problems of country, problems of society, ये right हमको केवल उन्हीं को देना चाहिए. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हर किसी को नहीं देनी चाहिए. नाउ जो एजुकेटेड पर्सन, दे कैन मेक प्रॉपर यूज ऑफ देयर राइट्स, तो हमको उन्हीं को देना चाहिए, ऐसा भी लोग कहते हैं. सेकेंड क्रिटिसिज्म जो है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लेके, वो निकल के आता है दैट ऑर्डिनरी मैन इज द स्लेव ऑफ, मतलब ध्यान से सुनो इस स्टेटमेंट को, ऑर्डिनरी मैन इज स्लेव ऑफ इंसिडेंट्स. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, ये देखो, द मासेज आर इग्नोरेंट एंड इलिटरेट. मासेज मीन्स द कॉमन पब्लिक. जो कॉमन पब्लिक है हमारी, वो क्या है, दे आर वेरी मच इग्नोरेंट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड, कैसे क्या चीज़ हो रही है, उनको ज़्यादा मतलब नहीं है इससे. दे हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस, दे विल वर्क अकॉर्डिंगली. सो दे डू नॉट इवन possess द कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट, है ना. उनको ये भी समझ में नहीं आता है कौन बेस्ट कैंडिडेट है, एंड हु कैन ज्वाइन, who is worth to join governmental policies. At a certain extent this is correct. If we see in our country's scenario, तो हम देखते हैं हमारे जितने भी झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स हैं, they never thought कि if we are voting this candidate, तो what benefit we are making as a citizen to our country, ये आगे चल के हमारी कंट्री के बारे में क्या करेगा, ये हम नहीं ध्यान में रखते हैं. वो नहीं ध्यान में रखेगा. उसको ये पता है कि भैया तुझे दिन का 500 का नोट मिल जाएगा, दारू की बोतल मिल जाएगी. तो ही इज कंसर्न्ड अबाउट दैट ओनली. सो टू सर्टन एक्सटेंट वी कैन से दैट दिस इज करेक्ट. सो अभी क्या निकालते हैं हम इसे, देयरफॉर इट इंटरेस्ट द राइट ऑफ वोटिंग टू इग्नोरेंट मासेस इज टू वेलकम डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज. अगर हम देंगे उनको राइट, if we will give this right to common people, common masses, तो हम क्या कह रहे हैं, इसके dangerous consequences के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए. So the system of universal adult franchisee establish a government of fools, because the fools and the ignorant are in majority in the society. ये plea दी जाती है कि universal adult franchisee जो है वो बेवकूफ़ों की सरकार बना देती है. क्यों भाई, क्योंकि आगे ज़्यादा लोग बेवकूफ़ी है हमारी सोसाइटी की. ये स्टेटमेंट हम नहीं मानते हैं. नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म हम देखते हैं वो आता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एनकरेजेस करप्शन. तीसरा जो प्रॉब्लम इसके निकल के आती है वो आती है दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है इट एनकरेजेस करप्शन. करप्शन बिल्डअप करने में हेल्प आउट होती है. कैसे, The common person of the country are poor citizens. अब हमारी कंट्री में देखें कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या एक बिलो एवरेज लाइफ जी रहे हैं. And the person who contest the elections, they are mostly the rich person. ये तो है. The people who are fighting election, who are taking part in election, they are rich people. अब as a result, the candidate who mostly belongs to the rich classes, they attract the poor people towards themselves by purchasing their votes. वो उनका वोट खरीद के या उनका राइट टू वोट खरीद के अपने पैसे से उनको खरीद लेते हैं. तो क्या है, करप्शन बढ़ता है. अब जो गरीब लोग हैं, द पुअर पीपल हु हैव द राइट टू वोट, they sell their votes. In this way, system of adult franchisee fails and encourages corruption, because that poor citizen, he is not voting by his mind, his vote is being purchased.
अब एक चीज हम और भी जो इसके फेवर में बोलते हैं, दे ऑल्सो से दैट इट इज अप टू दैट पुअर पीपल, टू दोज पुअर पर्सन्स, they can take money and they can vote appropriately, but these poor people, they don't have such strong thought process. That is why they don't get involved in such kind of things. भैया उसने पैसा ज़्यादा दिया है तो वोट उसको दे देंगे, इतना ही दिमाग जो है ये चलाते हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है जो इसका सामने आता है। नेक्स्ट फोर्थ क्रिटिसिज्म जो होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, वो होता है दैट all citizens are not equal. See, it is also wrong that all the people are equal, correct? Everybody has a different perspective of thinking. Somebody says that politics is a thing with which we can solve all the problems. Other people see politics is the game of corruption only, it's a game of power building only. So it will, हर इंसान का अपने सोचने का जो तरीका है वो अलग होता है। अब नेचर हैज़ नॉट क्रिएटेड एवरीबडी इक्वल, सबने नेचर ने बनाया ही हमको ऐसा है। सम आर वाइज विद देयर बर्थ ओनली एंड अदर्स आर फूल, उसको आप कितना भी समझा लो उसको बात समझ में नहीं आती है ना। ऑल द पीपल कैन नॉट बी गिवन सिमिलर टाइप ऑफ राइट्स बिकॉज ऑल आर नॉट इक्वली कॉम्पिटेंट। अब अगर ऐसा नहीं है तो क्या हमें उसे राइट टू वोट नहीं देना चाहिए? As a citizen of the country, see there are certain things which are beyond our jurisdiction, कि भाई अगर वो सिटीजन है कंट्री का तो राइट टू वोट तो उसको देना पड़ेगा। अब therefore all the people cannot be given the right to vote and to contest elections on equal basis, equal footings. At a certain extent this statement is correct कि भाई everybody is not equal, all have different perspective regarding different things, regarding different decisions, सबके अलग अलग होता है अपना, लेकिन इस बिहाफ पर किसी के राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स मोरालिटी। मोरालिटी क्या कहती है कि ये उस कैंडिडेट का या उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सभी वोटर्स को जाके समझाए। They must go door to door and they must explain their agendas to all the people, चाहे वो अमीर है या वो गरीब है, कि if you will vote us, these all are the things which will be done by us for you, भाई हम ये काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा चाहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जो इलिटरेट कैंडिडेट्स हैं या जो कम समझ पाते हैं पॉलिटिक्स को या नहीं समझना चाहते हैं, उनको भी मिनिमम इतनी बात तो है वो समझाई जाए। फिफ्थ क्रिटिसिज्म जो होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, ये होता है दैट फ्रेंचाइजी इज नॉट अ राइट बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो हमें राइट टू वोट मिल रहा है इसको हम अधिकार के रूप में नहीं, जिम्मेदारी के रूप में नहीं। सी दिस इज द वी आर इलेक्टिंग आवर गवर्नमेंट, वो क्या करने वाले हैं आगे, कैसे देश को चलाने वाले हैं आगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे। सो फ्रेंचाइजी इज नॉट अ राइट बट इट्स अ responsibility. Now many scholars of political science, they consider that the right to vote is not a right but it is a responsibility. This right can be extended only to those persons who are really capable to use this thing properly. भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उन्हीं लोगों को दी जाए जो कि सारे सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इफ इट इज एक्सटेंडेड to an incompetent person, it proves very useless. Therefore, the right to vote should be extended only to the capable and educated person. ऐसा जो क्रिटिक्स है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के, उन लोगों का ऐसा मानना है। तो सी एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अगर हम उन लोगों को देंगे ही नहीं, the people who are not able to judge, analyze, understand things properly, we will not give them responsibility, so they will never take responsibility.
तो अगर हम देखें नहीं, उनको लगे ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम्हें किसे वोट करना है, कैसे वोट करना है, तो ग्रेजुअली हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे सिटीजन्स को इस लायक बना रहे हैं कि वो ये सारे काम करें। तो ये तो कहानी थी किसकी, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दिस इज रोल ऑफ इलेक्शंस इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन का क्या रोल है, और हम ये आज हम यही बात करें, ठीक है। देखो, इलेक्शन जो है इज अ कॉन्टेस्ट अमंग कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू सीक द मेंबरशिप ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी और अ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। यही है इलेक्शन। इलेक्शन जीत के क्या कर रही है भाई, या तो एमपी बनेगा या एमएलए बनेगा, और हम 3 टायर सिस्टम पे चलते हैं, पंचायती राज की तरफ चलते हैं तो विल बिकम अ सरपंच। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में जाना है तो वो इलेक्शन उसको फाइट करना ही है। अब इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर हेल्ड पीरियोडिकली आफ्टर, इन इंडिया कितना क्या पीरियड है, 5 years। आफ्टर एवरी 5 years जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं उनके लिए हम जो है इलेक्शन हेल्ड करवाते हैं। अब द होल कंट्री कि हमारा पूरा जो देश है, और द एंटायर स्टेट और द एंटायर एरिया ऑफ द कंसर्न लोकल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव from number of candidates who contest election। कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड कर दिया, बहुत सारे लोग खड़े हुए, बिकॉज हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक सीट के लिए 20-20 जने खड़े होते हैं, उनमें से कोई एक जीतता है, किसी एक को जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला वो कैंडिडेट जो है वो विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है। द कैंडिडेट हु गेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट द अदर कैंडिडेट in the constituency is declared elected। वो elected declare कर दिया हमने। Now election provides opportunity to the people to participate actively in functioning of the democratic government। हमारे जो representatives हैं उन्हें हम send कर रहे हैं, तो indirectly we are also involved in the decision making policies। Now these enable the people to express their will। Elections, they widen up the scope of political awakening among the masses and educate them by familiarizing them with the issue of public concern। जब इलेक्शन आता है, किसी भी तरह का कोई भी इलेक्शन जब पास होता है, तो जनरली इन ईच कॉर्नर ऑफ द सिटी you will find people talking about different parties, what this particular person has done for us from previous 5 years, or either we should elect this particular candidate only or we will go for some else। इस तरह की बातें हमें मिल जाती हैं। भाई जब इलेक्शंस का माहौल होता है तो आप सुनते हैं फला पार्टी ने हमारे लिए इतना किया, दूसरी पार्टी ने हमारे लिए इतना किया, तो क्या माहौल बनाए भैया, किसको हम वोट करें। अब इससे क्या होता है, द पीपल हु आर नॉट सो मच इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, उनको पता ही नहीं है किस तरह से क्या वोट करना है, तो वो भी अवेयर हो जाते हैं। तो एक जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है डेमोक्रेसी का। सो इन इट फैसिलिटेट्स पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू वन ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू अनदर एंड लेजिटिमेट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय जस्टिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू लेड पीपल। क्या इलेक्शन यही करते हैं ना भाई, हम हमारे बिहाफ पर भेज देते हैं लोगों को, और वो लोग जाकर सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं। इलेक्शन अगर किसी ने 5 साल तक काम नहीं किया, अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी दे आर नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयरमेंट और बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, तो क्या है, इलेक्शन आएंगे और हम उसको हराकर किसी और पार्टी को दे देंगे, और बहुत पीसफुली एक पार्टी से जो ट्रांसफर है सत्ता का वो दूसरी पार्टी में हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी डू इन इलेक्शन। तो और अब डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन एंड इलेक्शन कैन बी हेल्ड ओनली इन डेमोक्रेसी। तो बोथ ऑफ देम आर कोरिलेटेड।
हम किसी भी एक के बारे में नहीं सोच सकते। अगर हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी की बात हमें करनी ही पड़ेगी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट democracy, we have to talk about election. If we are talking about election, we have to talk about democracy. So now, how many types of election, कैसे इंडिया में सारी चीजें कराई जाती हैं, that will be doing in our next slide.